हालेलुया। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जलाली लहू की जय हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। शालोम, शालोम, शालोम। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए यीशु मसीह। प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं यीशु मसीह। आपके पवित्र लहू के साए के नीचे आते हैं। जलाली लहू की कुदरत को खोलते हैं यीशु नासरी। प्रभु, आपके पवित्र लहू की शक्ति काम करे, पवित्र लहू की शक्ति काम करे। प्रभु, हम अपनी संध्या की संगति आराधना आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु जी, आपके वचन को खोलिए, आपके वचन पे मनन करना। प्रभु यीशु मसीह, हमें तेरी उपस्थिति में और नज़दीक लेकर आए। प्रभु, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। जलंधर में एक सिस्टर हैं तलजिंदर कौर, सब मिलके उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह उनकी किडनीज़ को छुएं, उनके लंग्स को छुएं, हार्ट को छुएं, उन्हें चंगा करें। सब मिलके प्रार्थना करें। प्रभु, हम तलजिंदर कौर को आपके लहू में छिपाते हैं यीशु मसीह। आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने तलजिंदर कौर को लाते हैं। प्रभु, हर बंधन, हर शैतानी जुआ उसके जीवन से टूट जाए। पुरखों के श्राप, जनरेशनल कर्सेज उसके जीवन से टूटे आपके लहू के द्वारा। यीशु मसीह, आपके खून की कुदरत तलजिंदर कौर को छुए। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, वी प्रे दैट यू वुड ब्लेस हर, दैट यू वुड ड्रॉ तलजिंदर कौर by your riven side from where the blood oozed out. Father, in the mighty name of Jesus of Nazareth, may you apply the ransom that Jesus paid on the cross of Calvary on the body of Taljinder Kaur. Lord, Jesus already paid the price of our redemption. Lord, may you appropriate that price that Jesus paid, and may you let Taljinder Kaur go free in the name of Jesus. May you pardon her lavishly, Lord Jesus. Hallelujah. May you touch her with your nail-scarred hand, and may you pardon her iniquities, for only you can pardon, for only you can forgive. You love to pardon the iniquity. There is no God like you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. So we ask you, Lord, that you touch Taljinder Kaur in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, we cover her under your blood right now. And Father, we pray for Amandeep Kumar. Lord, we cover Amandeep Kumar and Amandeep's sister, that your hand be upon her in the mighty name of Jesus. Lord, I pray for Malkiyat Gill and his family. I pray for Brother Sahil and pray for his father who is in Pakistan. Lord, for your healing anointing to flow over him. Lord, I bring Parminder Singh. May your spirit touch Parminder Singh, Lord. Pray for Bobby Art, for your blessing and anointing. I pray for Pastor Charanjit and his wife, Lord. Cover them under the blood of the Lamb. Hallelujah. Under the holy blood of the Lamb. I bless Karamjit Kaur, who is listening unto your word, Lord. May your hand be upon her. Lord, touch Sarabjit Surjit, Sabi Surjit, Lord. May your hand be upon Sabi Surjit, Lord Jesus. Plead your blood, plead your anointing, Lord Jesus. Father, I also pray for Teresa Alexandra from Trinidad. May your blessing, may your mighty hand be upon her. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Lord, I bless your daughter, Light of Jesus. Bless her. I pray for Brother Raman Khan for your blessing. I pray for Ruby Sanghera for your blessing over Brother Lalit Mehra, Brother Kundan Shah. Lord, bless these guys from Delhi. Tanuja Seth, Lord, may your hand be upon Tanuja Seth. Hallelujah. Speak your blessing over Sunita Guria Kansawar.
Your blessing, Lord, over Vinod Christian from Canada. Your blessing, Lord. People from Britain, may your hand be upon them. People from Canada, your hand be upon them. I pray for your daughter Agnes Lal and her family. May you cover them. May you protect them. May you bless them, Lord Jesus. Hallelujah. हालेलुया, तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय। यीशु मसीह, प्रभु इन प्रार्थनाओं को अपने चरणों में लीजिए। प्रभु निशा निशा को भी आपके ब्लड में छिपाते हैं। लॉर्ड, मे योर हैंड बी अपॉन देम। प्रे फॉर हरपाल सिंह बाजवा। May your hand be upon that man and his family, particularly over Amandeep Kaur, Lord. I speak your blessing. Hallelujah. तेरे लहू की जय। मन वचन और कर्मों से मैं बना रहूं तेरा दास, मिलती तुझी से शांति, रख तू मुझे अपने पास। जीवन के अंत समय तक मेरे दिल में रहे तेरा वास। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं चलूं प्रभु तेरे साथ, मैं चलूं प्रभु तेरे साथ। Lord, I also lift up Teresa Alexander's prayer request for her grandson who lives in London. May every demonic soul tie be broken off his life in the mighty name of Jesus. Lord, I pray that you would deploy angels now. May angels be activated. Lord, may his destiny be unleashed from heaven. May every dark shadow that is eclipsing his future and life may be banished in the mighty name of Jesus of Nazareth. Even now, Father, plead your blood, Lord. Hallelujah. Plead your holy blood, Jesus. तेरे लहू की जय हो, लहू की जय, तेरे पवित्र लहू की जय, पवित्र लहू की जय, पवित्र लहू की जय। Lord Jesus, we pray for Vinodini, Mrs. Vinodini Christian from Canada, for your blessing. May your hand move upon her, Lord Jesus. May you heal her. May you heal her body, Lord, in Jesus' name. Father, we also remember Pastor Sandeep's mother, Lord. She's ailing. May your healing anointing flow over her. May you heal her. May you console and comfort her. She lost her husband recently, Lord. And also your blessing over Brother Sandeep and his brother and his whole family in the mighty name of Jesus. Lord, we bless your name. Lord, we praise your name. Lord, we give you glory. Lord, we thank you, Lord Jesus, for redeeming us from the powers of darkness, for planting us into your kingdom, for making us your own, Lord Jesus, for adopting us into your beloved family. Lord, thank you for making us heir of your kingdom. Hallelujah. We thank you, Father, that you wrote our names down in the book of the Lamb of Life. Hallelujah. Teri mahima ho. Lord, we bless you. We praise you, King of glory. King of glory, we praise you, praise you, praise you. Our hearts are overwhelmed with joy and love. And Lord, that you protected us in this darkest hour. Lord, this truly is perilous time in human history. Such unprecedented things are happening. And you protected us from this vicious demonic entity that is stalking in the earth. This coronavirus, Lord, you protect your people. Keep them under the hollow of your hand. तेरे लहू की जय, तेरे खून के साए के नीचे अपने लोगों को छिपा। इमैनुअल होता को, उनके परिवार को अपने लहू में छिपा खुदावंद। अपने खून के साए में प्रोटेक्ट कर खुदावंद अपने लोगों को। तेरी वाचा के लहू को मैं तेरे लोगों के ऊपर छिड़कता हूँ। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु नासरी,
हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा। हालेलुया। लॉर्ड वी ब्लेस यू, वी प्रेज यू, वी गिव यू ग्लोरी। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं प्रेरित पौलुस की यात्राएं, और हम लोग देख रहे हैं फिलिप्पियों की पत्री के अंदर अद्भुत बातें। मैं उससे कंटिन्यू करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पहुंचिए दोबारा से। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसका 16 अध्याय निकालिए और उसके 16 वचन को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 16 वचन। एंड इट केम टू पास एज वी वेंट टू प्रेयर, ए सर्टन डैमसल possessed with the spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. प्रेरित पौलुस और सिलास, हम सुबह देख रहे थे कि वचन मनन करने के लिए दरिया के किनारे गए, बाय द रिवर साइड। वहाँ पे परमेश्वर ने लिडिया नाम की एक बहन का हृदय खोला और उसने प्रभु को अपना जीवन दिया। उसने और उसके पूरे घराने ने प्रभु को ग्रहण किया, और उस बहन ने बपतिस्मा लिया। और उसके बाद प्रभु की उस दासी ने परमेश्वर के दासों को विवश किया, मजबूर किया, और उनसे ये कहा, यदि तुम मुझे प्रभु की दासी जानते हो तो मेरे घर चल के कुछ दिन ठहरो। हालेलुया। मैं सुबह आपको बता रहा था पहुनाई क्या होती है, सेवा करना क्या होता है। इस बहन ने परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों को विवश किया। केवल बनावटी दिखावे वाली हॉस्पिटैलिटी नहीं है ये, जिसे पंजाबी में हम प्रौणचारी कहते हैं, ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए। हृदय से ये प्रभु के दासों को अपने घर ले गई। ये परमेश्वर के दासों को अपने घर लेकर नहीं गई भाई और बहनों, ये परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर गई और परमेश्वर की महान आशीषों को लेकर गई। और ये जो बहन है, ये एक मेन पिलर थी थुआटीरा की कलीसिया का। बहुत धनी थी, परमेश्वर ने इसको बहुत फलवंत किया, बहुत आशीषित किया, और परमेश्वर को ये भाया कि इसके रिसोर्सेस को, कई बार परमेश्वर को भाता नहीं है आपका धन, जिसे आप गांठ बांध बांध के अलग करके रखते हो, उसकी अनुकंपा नहीं है। परमेश्वर की कृपा चाहिए, अनुकंपा चाहिए, परमेश्वर की प्रेम भरी दृष्टि चाहिए कि वो आपको ये सौभाग्य दे कि आप अपना धन प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। आप अपने घर को प्रभु के काम के लिए खोलो, आप अपनी गाड़ी को दो प्रभु के काम में इस्तेमाल हो, आप अपने रिसोर्सेज, चीज़ों को दो कि प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब परमेश्वर की करुणा की दृष्टि है आपके ऊपर। हालेलुया। सभी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये बहन उन्हें विवश करके ले गई, और निश्चय प्रेरित पौलुस कुछ दिन वहाँ पे ठहरा। और 16 वचन ये बता रहा है कि वहीं से प्रेरित पौलुस जा रहा है किसी और जगह प्रार्थना के लिए, उस बहन के घर से। रास्ते में किसी जगह, चौराहे पे, चौक पे एक लड़की मिलती थी इनको। वो लड़की लोगों को भावी बताती थी, जिसे पंजाबी में कहते हैं पुछ देना। पुच्छें पूछते थे उससे। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। लोग उसके पास आते थे और वो भेद की बातें दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बताया करती थी। तो जब वो परमेश्वर के इन श्रेष्ठ दासों को देखती थी, वो लड़की जिसके अंदर ये दुष्ट आत्मा थी, The same followed Paul and us and cried, saying, These men are the servants of the Most High God, which shew unto us the way of salvation. वो लड़की पौलुस, सिलास को, और यहाँ पे इस समय अगर आप देखेंगे 17 वचन में द सेम फॉलोड पॉल एंड अस लिख रहा है। यहाँ पे ये लिखने वाला है लूका। पहले पौलुस और सिलास 2 जन थे,
लेकिन अब जो लूका लिख रहा है इस वचन को, लूका लिख रहा है द सेम फॉलोड अस। लूका अपने आप को बीच में इंक्लूड कर रहा है, तो इसका मतलब अब लूका भी वहाँ पहुँच गया है, जो प्रेरितों के काम पुस्तक को लिख रहा है, जिसने लूका रचित सुसमाचार भी लिखा है। लूका भी, और शायद एक और जन भी है कोई, मैं अभी आपको बताऊंगा कितने लोगों का जिक्र है यहाँ पे फिलिपियों की पत्री में। ये सब लोगों का एक झुंड प्रभु के दासों का इस लिदिया नाम की बहन के घर में उतरा हुआ है, और वहाँ से प्रभु की सेवा कर रहे हैं ये लोग। देखिए बहन कितनी धन्य है जिसने अपने घर को प्रभु के दासों के लिए खोला हुआ है। हालेलुया। तो आप सचमुच में धन्य हो अगर आपका घर प्रभु के काम आता है, अगर आपकी गाड़ी प्रभु के काम आती है, अगर आपने जो धन रखा है इकट्ठा करके वो प्रभु के काम आता है, अगर आपके रिसोर्सेज, आपकी चीज़ें प्रभु के काम आती हैं, आप धन्य हो। हालेलुया। तो ये लड़की जिसमें दुष्ट आत्मा है, ये पौलुस और सिलास और लूका और प्रभु के जो भक्त वहाँ से निकलते हैं, उन्हें देख के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है, ये क्या कहती है? दीज आर द सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड विच शू अनटू अस द वे ऑफ साल्वेशन। आपको मैंने बताया कि पुराने नियम में पिता परमेश्वर का एक नाम है हिब्रू में, वो नाम है एलेलियोन। आत्मा की दुनिया में सब आत्माएं यहोवा पिता को एलेलियोन कहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अति महान परमेश्वर, सबसे महान सृष्टा रचता परमेश्वर। तो ये दुष्ट आत्मा से जकड़ी लड़की प्रेरित पौलुस, साइलस, सिलास, लूका और कुछ प्रभु के दासों का झुंड है, जिनकी रोज पब्लिसिटी करती है, चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, ये परमेश्वर के महाप्रतापी एलेलियोन के, हिब्रू वर्ड है एलेलियोन, मोस्ट हाई गॉड के सर्वेंट्स हैं। ये मोक्ष का राह, निर्वाण का, मुक्ति का राह दिखाते हैं। देखिए अगर आज का कोई, मैं कईयों पादरियों के वीडियो देखे मैंने, बड़ी सभा करते हैं कई झूठे नबी, उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ी औरत आती है तो उसकी तरफ माइक करके उसके मुंह की तरफ करके पूछते हैं, देख तू क्या देख रही है? तो दुष्ट आत्मा, वो सब सेटिंग होती है। दुष्ट आत्मा बोलती है, मैं तो संत जी आग ही आग देख रही हैं। देखा ना, फिर आग हूँ ना मैं, मेरे इर्द गिर्द आग है ना। वो ऐसी चीप पब्लिसिटी चाहते हैं कई झूठे फ्रॉड जो शार्लटन हैं, जो उनको ऐसी बदरुओं से, दुष्ट आत्माओं से अपनी पब्लिसिटी चाहिए, मार्केटिंग करवाते हैं। आपको मालूम, यीशु मसीह केवल दुष्ट आत्माओं को निकालने का आदेश देता है, दुष्ट आत्माओं को खिलाने का। पंजाब में एक ट्रेडिशन है, बदरुआं नू खिलाना। बदरुओं को खिलाने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, बाइबल के अंदर दुष्ट आत्माओं को निकालने का, यीशु मसीह के नाम में निकालना है, अपनी ताकत से नहीं निकालना, अपने आप को ऊंचा नहीं करना, अपनी अनॉइंटिंग का मुजाहरा नहीं करना है। यीशु मसीह के नाम में उन्हें आदेश देना है और वो निकल जाएंगे। और ये काम जो विश्वास करेंगे ना प्रभु यीशु मसीह पे, उनके द्वारा होंगे। इसके लिए किसी विशेष अपोस्टल, विशेष मेजर माइनर प्रॉफिट होने की ज़रूरत नहीं है। जीसस सेड, दे हु बिलीव दीज साइंस शैल फॉलो देम, for they shall cast out demons in my name. Demons subject to the authority of the name of Jesus of Nazareth. बदरुएं, दुष्ट आत्माएं, शैतानी शक्तियाँ, जादूगरियाँ, जादू टूने यीशु मसीह के चरणों में झुकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को वो नाम मिला है जो सब नामों से श्रेष्ठ है, ताकि स्वर्ग में, पृथ्वी पे, पृथ्वी के नीचे हर घुटना यीशु मसीह महाप्रतापी राजाधिराजा के नाम में झुक जाए और हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। तो परमेश्वर के दासों की मार्केटिंग कर रही थी, ये पब्लिसिटी कर रही थी ये बदरू से जकड़ी हुई लड़की। अगर आप पढ़ेंगे इसका 18 वचन, एंड दिस डिड शी मैनी डेज, कई दिन तक ऐसा करती रही। तो प्रेरित पौलुस, सिलास और अब 17 वचन बताता है लूक भी है इसके अंदर, और शायद टिचिकस भी है, एपाफ्रोडिटस भी है इनके संग पूरे झुंड में। तो ये सब यहाँ पे इकट्ठे हैं और किसके घर में रह रहे हैं? लिडिया नाम की बहन के घर में रह रहे हैं। दिस
डेड शी मैनी डेज, कई दिन तक ऐसे करती रही। इसी के घर से रोज जाते हैं प्रभु के भक्त लोग, और रास्ते में ये उनके संग ऐसा करती है, उनका प्रचार करती है। बट पॉल बीइंग ग्रीव्ड, सच्चा प्रभु का दास पौलुस शोकित हुआ ये देखकर। वो खुश नहीं हुआ। उसने बदरू वाली लड़की के मुंह में माइक डाल के उससे अपनी पब्लिसिटी नहीं करवाई कि हम कितने महान दास हैं प्रभु के, ताकि जो भीड़ आगे बैठी उनके ऊपर प्रभाव पड़े। ये काम प्रेरित पौलुस ने नहीं किया। वचन में लिखा पॉल वॉज ग्रीव्ड, पौलुस दिल में शोकित हुआ, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से जकड़ी लड़की लोगों का ध्यान पौलुस, सिलास, लूक की तरफ खींच रही थी, जो कि प्रभु के भक्त को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। कि लोग, परमेश्वर के सच्चे संतों को गवारा नहीं होता कि लोग उनकी तरफ तवज्जो करें बजाय यीशु नासरी के। हालेलुया। परमेश्वर के सच्चे भक्तों की हृदय की आशा होती है, तू बढ़ और मैं घटूं। हालेलुया। आपको मालूम, जितनी मार्केटिंग, जितनी पब्लिसिटी, जितना अपने आप को प्रमोट करने के एजेंडाज, गिमिक्स, पब्लिसिटी स्टंट पादरी लोगों ने लगाए हैं, ये देख के यहोवा का हृदय, हमारे पिता का हृदय ग्रीव हुआ है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस का हृदय दुखी हुआ, ही वॉज ग्रीव्ड। बदरू कह तो सच रही थी कि ये एलियोन के सर्वेंट हैं, ये परमेश्वर का राह दिखाते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस को अपने स्वामी यीशु मसीह की तरह बदरुओं से अपनी पब्लिसिटी करवाना पसंद नहीं है। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? ध्यान से सुन लीजिए। हालेलुया। तो पौलुस क्या करता है, सुनिए ध्यान से। लिखा है, But being grieved, turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came. He came लिखा है, ये मेल स्पिरिट है। He came out the same hour. बदरू उसी समय निकल गई। हालेलुया। उसी समय निकल गई। हालेलुया। 5 हफ्ते आओ, 7 एतवार आओ वाली बात नहीं हुई कोई। उसी समय दुष्ट आत्मा निकल गई। एंड व्हेन हर मास्टर सॉ दैट द होप ऑफ देयर गेन वाज गॉन, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the ruler. अब देखिए क्या हुआ जब प्रेरित पौलुस ने, सिलास ने ये काम किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है अगर आप पढ़ेंगे ना इसका 16 वचन में लिखा है, एंड इट केम टू पास एज वी वेंट टू अ प्रेयर अ सर्टेन डैमसेल possessed with the spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. जिन स्वामियों ने इस लड़की को रखा था, इसे इस्तेमाल करते थे पुच्छें देने के लिए, भावी कहने के लिए, उनके लिए ये कमाई का ज़रिया थी। तो पौलुस ने जब दुष्ट आत्मा निकाल दी तो वो कमाई का साधन जाता रहा। एक लड़की ने मोक्ष पा लिया, एक बदरू से जकड़ी लड़की प्रभु के पास आ गई, लेकिन क्या हुआ, एक बहुत बड़े संकट में प्रभु के दास गिर गए। बहुत बड़ा संकट है। वो पौलुस और सिलास को पकड़ के ले गए रूलर्स के पास। किन के पास? 20 वचन पढ़ें। दे ब्रॉट देम टू द मजिस्ट्रेट सेइंग, दीज मैन बीइंग जूज डू एक्सीडिंगली ट्रबल आवर सिटी एंड टीच कस्टम्स विच आर नॉट लॉफुल फॉर अस टू रिसीव, नीदर टू ऑब्जर्व बीइंग रोमन्स। And the multitude rose up together against them. 22 नंबर वचन, and magistrate rent their clothes and commanded to beat them. उन्होंने ऐसा राजनीतिक जाल में फंसा दिया परमेश्वर के सच्चे दासों को। मजिस्ट्रेटों के सामने ला के ये कहा कि यहूदी हैं, ये बहुत समस्या खड़ी कर रहे हैं, ये वो रीति रिवाज परंपराएं सिखा रहे हैं जो हम मान नहीं सकते और ना हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम तो रोमी हैं। और फिर कहते हैं, एंड द मल्टीट्यूड रोज अप अगेंस्ट देम एंड द मजिस्ट्रेट रेंट ऑफ देयर क्लोज एंड कमेंडेड टू बीट देम। लोग उनके विरुद्ध में खड़े हो गए, मजिस्ट्रेट ने कपड़े फाड़े और पौलुस और सिलास को बहुत मार पड़ी, डंडे पड़े उनको पुलिस से। समझ रहे हैं आप? एंड वेन दे लेड मैनी स्ट्राइप्स ऑन देम, उनको कोड़े मारे गए। दे कास्ट देम इनटू प्रिजन, उनको जेल में डाल दिया। चार्जिंग द जेलर टू कीप देम सेफली, जेल में डाल दिया पौलुस और सिलास को, मारा उनको, उनके ज़ख्म थे, उनके खून बह रहा था, और जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर कोठरी है जिसके अंदर डाल दिया, और उनको जंजीरों से बांध दिया जेल के अंदर। सज़ा किस लिए मिली पौलुस और सिलास को, और लूका को भी किस लिए सज़ा मिली है? क्योंकि प्रभु के ये भक्त प्रभु का काम कर रहे थे।
इन्होंने दुष्ट आत्मा से जकड़ी लड़की को नया जीवन दे दिया और इन्होंने नहीं चाहा कि इनकी पब्लिसिटी की जाए। अगर बदरू को ना निकालते तो ये मसले में ना पड़ते पौलुस और सिलास, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा कि उनकी पब्लिसिटी करे बदरू, उनके बारे में बोल बोल के प्रचार करे, उनकी मार्केटिंग करे। इससे पौलुस का हृदय दुखी हुआ, क्योंकि वो अपने लिए महिमा नहीं चाहता था, वो प्रभु के लिए महिमा चाहता था। हालेलुया। और इस कारण पौलुस को जेल में जाना पड़ा, पौलुस और सिलास को मार खानी पड़ी। अब जब जेल में प्रभु के भक्त चले गए पौलुस और सिलास, तो उनका मनोबल टूट नहीं गया। पौलुस और सिलास जेल में जाके प्रभु के आगे कुड़कुड़ाने नहीं लगे, बुड़बुड़ाने नहीं लगे। जरा याद कीजिए, पौलुस और सिलास का झगड़ा हुआ है, पौलुस का झगड़ा हुआ है बरनबास से, जॉन मार्क के कारण, यूहन्ना मरकस के कारण। बरनबास साइप्रस को चला गया है, पौलुस सिलास को लेके यात्रा के लिए निकल गया थर्ड मिशनरी जर्नी के लिए। लेकिन जहाँ भी जाना चाहता है पौलुस, पवित्र आत्मा रोकता है। फिर वो त्रोआस में उतरे हैं। 16 अध्याय के शुरू के वचन पढ़िए। त्रोआस में उन्होंने प्रार्थना की, त्रोआस में प्रभु ने उनको अंदर से हील किया। त्रोआस में उन्हें एक दर्शन मिलता है, एक मकदूनिया का ग्रीक आदमी, यूनानी व्यक्ति उन्हें बुला रहा है, हमारी सहायता करो। वो दर्शन देख के प्रेरित पौलुस निकला है, जो स्वर्गीय दर्शन देखा उसने, उस दर्शन को देख के प्रभु की सेवा में निकला है। और अब मार पड़ रही है, कोड़े पड़ रहे हैं और अब जेल के अंदर ठूंस दिया गया है। तो प्रेरित पौलुस कुड़कुड़ा नहीं रहा, बुड़बुड़ा नहीं रहा। प्रभु आपने तो हमें दर्शन दिया था, आपका दर्शन लेके चले हैं, तो हमारे संग ऐसा कैसे हो गया, शैतान ने हमें कैसे दाव लगा दिया। ये नहीं कह रहा प्रेरित पौलुस। देख लीजिए भाई और बहनों, जब स्वर्गीय दर्शन मिलेगा उसका मतलब ये नहीं कि बेड ऑफ रोजेज मिल जाएगा आपको। उसका मतलब ये नहीं कि तूफान नहीं आएंगे, जलजले नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी, अवश्य आएंगी। पौलुस और सिलास देखें क्या कर रहे हैं, ना कुड़कुड़ा रहे हैं, ना बुड़बुड़ा रहे हैं, ना ही अपने दर्शन पे शक कर रहे हैं, ना ही अपने इरादे के ऊपर उन्होंने शक किया, मरमर किया, ग्रम्बल किया। जेल के अंदर जब डाल दिया गया प्रभु के दासों को, तो प्रभु के दास क्या कर रहे हैं, वचन में लिखा है, 24 वचन पढ़े, हु हैविंग रिसीव्ड सच अ चार्ज थ्रस्ट देम इनटू द इनर प्रिजन। जेल के अंदर एक काल कोठरी है, वहां डाला पौलुस और सिलास को काल कोठरी में। एंड मेड देयर फीट फास्ट इन द स्टॉक्स, और पाँवों को सांकलें होती हैं बंधी हुई लकड़ी की, उनके अंदर पाँव फंसा दिए उनके, और हाथ को जंजीरों से बांध दिया, जो जंजीरें दीवार में लगी थी। प्रभु के श्रेष्ठ दासों के साथ ऐसा किया उन्होंने। हालेलुया। लेकिन प्रभु के दासों का मनोबल देखिए, उनको जेल में डाला है, अभी उन पे मुकदमा चलाएंगे, उनको और सजा देंगे, लेकिन देखिए प्रभु का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। देखिए जीवते परमेश्वर की सामर्थ। यहाँ पे क्या लिखा है, एंड एट मिडनाइट, आधी रात को। आपको मालूम, अगर आप पढ़ेंगे ना 16 अध्याय प्रेरितों के काम, 16 अध्याय का 9 वचन, तो देखें क्या लिखा है यहाँ पे, एंड ए विजन अपीयर्ड टू पॉल इन द नाइट। ये दर्शन भी रात को मिला है पौलुस को, और अब जब जेल में डाल दिए गए हैं, अब भी रात को दुआ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे हैं, आधी रात को लिखा है, एंड एट मिडनाइट पॉल एंड साइलस प्रेड, प्रार्थना की, और उसके बाद सैंग प्रेजेज अनटू गॉड। हालेलुया। जेल के अंदर परमेश्वर का स्तुति गान, भजन कीर्तन करने लगे हैं। एंड द प्रिजनर्स हर्ड देम, और कैदी उनको सुन रहे हैं। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, बाइक पे जाता हूँ, जब देखता हूँ सड़क पे कुछ लोग जा रहे हैं, स्लो हो जाता हूँ और भजन गाने लगता हूँ प्रभु का। अगर कोई पीछे बैठा होता तो उसको ऊंची ऊंची बताने लगता हूँ, यीशु मसीह मर गया क्रूस पे, तीसरे दिन बाद जी उठा। अरे भाई, यीशु मसीह पताल को जीत के, मृत्यु को जीत के जयवंत हुआ। पताल को यीशु मसीह ने हरा दिया। यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हैं। तो बहुत सारे लोग सुनते हैं प्रभु का वचन। हालेलुया है। प्रभु का वचन फैलाइए भाई और बहनों। क्या कर रहे हैं आप चर्च के सिस्टम के अंदर कैद होके मत रह जाइए। ये चर्च का जो सिस्टम है ना, बड़ा विशेष है। ये आपको फंसा के रख लेगा मेरे भाई।
बहुत सारे सेवक शुरू करते हैं, आग होती प्रभु के लिए, साइकिलों पे जा जा के, पैदल जा जा के किताबें बांटते, पर्चे बांटते, फिर चर्च शुरू कर देते हैं। फिर चर्च शुरू ऐसा होता है, सोमवार को मिसेस सैमुअल के घर, मंगलवार को मिसेस माइकल के घर, बुधवार को बरकत मसीह साहब के घर, वीरवार को मिस्टर शमाउन के घर, और शुक्रवार को मिस्टर पतरस के घर, शनिवार को मिस्टर किसी के घर। सारे दिन बुक हो जाते हैं, कभी प्रभु का वचन लेके बाहर जाते ही नहीं। और फिर चर्च बिल्डिंग बनाने के प्रोग्राम में शैतान ऐसा उलझाता है कि बस उसके अंदर ही उलझ के रह जाते हैं। बहुत सारे तो मटेरियल चीज़ें इकट्ठी करने में ही जुट जाते हैं, अपना जीवन गारे पत्थर के घरों को बनाने में ही ख़त्म कर देते हैं। मैं प्रभु में जब आया, मैंने प्रभु की सेवा शुरू की, बसों में जाके, रेलवे स्टेशनों पे जाके, स्कूलों में जाके, जहाँ फैक्ट्री होती थी वहाँ जाके, भट्टों पे जाके, ऑफिसों के अंदर जाके, दुकानों के अंदर घुस घुस के प्रभु का वचन सुनाया। और भाई और बहनों, ये काम मैं आज भी करता हूँ। हालेलुया। ये काम करना कभी छोड़ेंगे नहीं। कभी इतने बड़े बिशप नहीं बनेंगे, कभी इतने बड़े मेजर माइनर प्रॉफिट नहीं बनेंगे कि सड़कों पे जा जा के यीशु मसीह के पर्चे हम ना बांटें। हालेलुया। करिए ऐसे काम। मैं किसी जगह गया, मैंने एक पास्टर जी से पूछा कि एक बड़ी सभा करते हैं, दिल्ली की बात है, बहुत साल पुरानी। उन्होंने बोला, ब्रदर कम से कम 1 लाख रुपया लग जाएगा। तो मैंने बोला, अच्छा 1 लाख रुपया लगेगा तो कितनी लोग आ सकते हैं? वो बोले 10,000 लोग आ जाएंगे। पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। मैंने अगले दिन पास्टर जी को अर्ली मॉर्निंग बोला, मैंने बोला आपके पास कितने न्यू टेस्टामेंट ट्रैक्ट्स हैं? तो उन्होंने मुझे दिखाया, काफ़ी पड़े थे, 5-7 हज़ार ट्रैक्ट न्यू टेस्टामेंट होंगे और 15-20 हज़ार ट्रैक्ट पड़े थे। पास्टर जी के पास बाइक थी, मैंने बोला चलो मेरे संग। एक हमने छोटा सा मेगाफोन लगाया आगे बाइक के, मैं उनको बिठाया, हम निकले बाहर। मैंने माइक लेके छोटा सा बाइक पे ही साथ में खड़े होकर प्रभु के वचन का प्रचार करना शुरू किया। 2-2, 3-3 मिनट के छोटे छोटे मैसेज और एक छोटा सा गीत गाया। 200 लोग, 300 लोग आ गए, उनको पर्चे बांटे, न्यू टेस्टामेंट दिया। वहाँ से आगे गए 1 किलोमीटर, वहाँ खड़े हुए 500 लोग आ गए, फिर वहाँ से आगे गए, फिर 500 लोग और जगह आ गए, एक जगह 2,000 लोग आ गए, एक जगह 2-3 हज़ार लोग आ गए। करते करते हमने 5-6 घंटे में 15-20 हज़ार लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, ट्रैक्ट बांटे, न्यू टेस्टामेंट दिए, और हम अपने घर आ गए। और मोटरसाइकिल में 100 रुपये का तेल भी नहीं लगा। लेकिन कोई बड़ी स्टेज पे जाके चमकने वाला काम नहीं मिला हमें, बहुत बड़े सेलिब्रिटी स्टार बन के, वो सौभाग्य तो नहीं मिला। लेकिन गलियों कूचों में, सड़कों में, चौराहों में जाके यीशु मसीह के नाम को फैलाने का सौभाग्य अवश्य मिला। तो बहुत सारा काम मिनिस्ट्री का इतना हाई फाई बना दिया गया है, इतना सेलिब्रिटी सिंबल, इतना ज़्यादा पैराफर्नेलिया इकट्ठा कर लिया है कि असल में प्रभु का काम नहीं हो रहा। मैं यूएस में था, मुझे किसी ने बताया कि एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन संस्था है इंडिया में, उनकी रिपोर्ट ने, अमेरिका में जब उनकी कलेक्टिव रिपोर्टों को 25-30 सालों की को यूएस में देखा, तो उन रिपोर्टों से ये पता लगा कि पूरे इंडिया में कम से कम 6 बार वचन फैलाया जा चुका है, उनके स्टेटमेंटों के लिहाज से, उनकी रिपोर्टों के लिहाज से। तो सच्चा काम प्रभु का बहुत सरल है भाई और बहनों। सड़क पे जाइए, शुरू हो जाएगा प्रभु का काम। मैंने सड़कों पे दुष्टात्माएं निकाली लोगों में से, सड़कों पे चंगाइयाँ हुई हैं, उसको वीडियो बना के डॉक्यूमेंट करके नहीं रखा हमने, उसकी ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग सब कुछ जानता है। हालेलुया। ये भी एक आँखों की अभिलाषा है बहुत सारे लोगों की। तो एक कल्चर क्रिएट कर दे, वेस्ट एक कल्चर क्रिएट करता है, उस कल्चर की नकल हमारे देश के लोग करते हैं, हमारे देश के सेवक लोग उसकी नकल करते हैं, उस कल्चर की, ना कि इस वचन को खोजते हैं। देखें पौलुस और सिलास कैसे सेवा कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक रॉ स्टाइल है सेवा करने का। सड़कों पे, चौकों पे, कूचों में, गलियों में, दरिया के किनारों पे, घरों घरों में जाके ये है काम। जेलों के अंदर ऊंचा गा रहे हैं, आधी रात को जानबूझ के ऊंचा भजन गा रहे हैं, यीशु मसीह का नाम ऊंचा ऊंचा बोल के ले रहे हैं।
घाव हैं, खून बह रहा है, चोटें लगी हैं, और भोजन भी खाने के लिए नहीं मिला, भूखे हैं, लोगों ने गालियां दी हैं गंदी गंदी, मारा है, मजिस्ट्रेट ने कपड़े फाड़े हैं, जेल के अंदर काल कोठरी में ठूसा है। भाई और बहनों, आपके शरीर को कैद कर सकता है शैतान, ये दुनिया का सिस्टम आपकी आत्मा को कैद नहीं कर सकता। हालेलुया, आत्मा स्वतंत्र है। पलूस सिलास ने अपनी आत्मा को अंकुश लगने नहीं दिया, अपनी आत्मा को निराशा की दलदल में जाने नहीं दिया। ऊंची ऊंची गाने गा रहे हैं प्रभु के, तेरे नातों शाना वालिया वारी जाइए, तेरे नातों यस्सु सोनिया वारी जाइए, यस्सु 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 जप दे जाइए, तेरे नातों शाना वालिया वारी जाइए, तेरे नातों है हयाती, खून तेरे तो खलासी, तेरे नातों है हयाती, खून तेरे तो खलासी, तेरे नातों है हयाती, खून तेरे तो खलासी, तेरा रुतबा सब तो आला ये दस दे जाइए। हालेलुया। देखिए, कोई साज नहीं बजाता मैं, कोई माइक नहीं लगाए हुए, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है मेरे पास में। हालेलुया। मसा चाहिए भाई और बहनों, पाक रूह का, यीशु मसीह की हुजूरी चाहिए। हालेलुया। तो खुदा की ये बंदे ऊंची ऊंची आवाज़ में गा रहे हैं और सारे कैदी सुन रहे हैं। प्रचार हो रहा है आधी रात को भी, दिन भर में भी किया है, पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, बुरी दुर्दशा की है लोगों ने, दुष्ट हैं लोग, अंधकार के वश में पड़े हैं, लेकिन जेल के कैदी वचन सुन रहे हैं। तो क्या हुआ, जब भजन गा रहे हैं और लोग सुन रहे हैं कैदी, 26 वचन, एंड सडनली देयर वॉज अ ग्रेट अर्थक्वेक। यहोवा सृष्टि का मालिक है, वो जब चाहे अर्थक्वेक भेज सकता है, उसने भूकंप भेज दिया। हालेलुया। जेल की नींवें डोल गई भाई और बहनों, ये अर्थक्वेक चाहिए, पाक रूह का अर्थक्वेक। जेल की नींव डोल गई और जितने कैदी सारे आज़ाद कर दिए। किसने? खुदा के दूतों ने, परमेश्वर के एंजल आ गए यहाँ पे। सारे कैदियों ने वचन सुना यीशु मसीह का, सारे कैदियों के हृदय में पवित्र आत्मा ने काम किया, सारे कैदियों को आके एंजलों ने, स्वर्गदूतों ने आज़ाद कर दिया। तो रोमी दरोगा अपने आप को, वो दरोगा मारने लगा जो फिलिपियन दरोगा है। पलूस और सिलास कहते हैं अपने आप को नुकसान मत कर, हम यहीं हैं। देखिए खुदा का काम। दरोगा ने, पढ़िए वचन आगे मेरे भाई और बहनों, दरोगा ने, दरोगा के पूरे ख़ानदान ने, भाई और बहनों, आधी उसी रात कोई बपतिस्मा ले लिया। पलूस के ज़ख्म थे, सिलास के ज़ख्म थे, खून सूख गया था, शायद दर्द हो रही होगी जिस समय, मारा बहुत है, भूखे भी होंगे, लेकिन उसी रात को ही उन्होंने बपतिस्मा दे दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा दिन चढ़ने दीजिए, थोड़े ज़ख्म हैं, थोड़ा घाव भर जाए। उसी समय प्रभु के दासों ने प्रभु के काम को किया। ऐसे हैं प्रभु के सच्चे संत, ऐसे पवित्र आत्मा का काम हो। कोई जुगाड़बाजी नहीं है यहाँ पे, कोई बहुत बड़े म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई बहुत हाई फाई हाई डेफिनेशन वाला साउंड सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ी स्टेज नहीं है, बहुत बड़ा पराफरनेलिया नहीं है। पाक रूह है जो काम कर रहा है। आज सब कुछ है, लोगों के पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन पाक रूह नहीं है, पवित्र आत्मा की हजूरी नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। अर्थक्वेक नहीं आ रहा, ये रूह वाला अर्थक्वेक ये चाहिए, ये चाहिए ऐसा जीवन आपको। तो सच्चा जीवन जिए प्रभु के लिए, बनावटी जीवन जीना बंद कर दीजिए, चिकना चुपड़ा बनावटी शुगर कोटेड प्रचार करना बंद कीजिए, डबल जीवन जीना बंद कीजिए, समर्पण कीजिए, घुटने टेकिए यीशु मसीह के आगे, उससे कहिए मुझे अपनी आग से भर, या तो आग दे या मैं जीना नहीं चाहता।
मांगें उससे। प्रेरितों जैसा जीवन हमें चाहिए। हालेलुया। इसी जर्नी को हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। यहीं मैं इसे समाप्त करता हूँ। कल सुबह फिर इस पे आगे मनन करेंगे हम। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की।